ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है ना, जो भी जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम उसके अकॉर्डिंग मेरा आपको अभिवादन है। ये इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड जियोमेट्री। हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, हाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एवरी ईयर in NEET we can say 2 to 3 questions are from hybridization. We can say in today's 15 to 20 minutes class, 2 to 3 questions are coming from this topic, and we can say from today's class. In G-Mains either 1 or 2 questions are there, or in any other of the competitive examinations in which chemistry is involved, 2 to 3 questions are asking from this topic every year. So stay with me for only 15 to 20 minutes and get all the informations about hybridizations. Okay, so how to first of all, how to determine the hybridization of a molecule. I am not going into the definition of hybridization because it is everywhere. You can simply type in Google, or you can simply pick up your book and you can easily find the definition of hybridization. This we will discuss in another day or in another video. Okay, in this video we are going to discuss about only determination of hybridization and determination of the shape of the molecules. How? First of all, suppose आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स गिवन है, सब 6 गिवन है, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन you have to know about the number of valence electron in the central atom. SF6 है। अब SF6 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम में वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे करेंगे, लेट अस सी। most of the elements are p block, for which hybridization is asked in different exams. So we have to know about the p block. P block is starting from we can say boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. This is 13, this is 14, this is 15 group, this is 16, this is 17, this is 18. Periodic table, और periodic table में आप अच्छी तरह से जानते हैं, बैंगन, आलू, गोभी, थैला, like this, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु, नाना पाटेकर, सबसे बिछड़े, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखेंगे होंगे, और सीमा, सिलेगी, तेरी, पॉकेट लाइक दिस, फिर कल बरसात आई, आंटी लाइक दिस, है ना, ऊपर हीलियम है, हीलियम का जरूरत नहीं है, हीलियम है ना, अगर कर जीरो रन कर लाइक दिस। इस तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। तो दिस इज वेरी सिंपल। इफ यू हैव मेमोराइज्ड द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, if you have memorized, then you can easily find the valence electron of an element. Suppose any atom or element which is belongs to 13 group, suppose this is TL, this is belong to 13th group of the periodic table. It consists 3 valence electron, it consists 4 valence electron, they consist 5 valence electron, all consist 6 valence electron. Oxygen family, fluorine family consists 7 electron, and this is 18 group. This family, noble gas family, consists 8 electron in their outermost shell. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो सेंट्रल एटम है वो किस फैमिली से, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैव। डन, इजीली पता कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। इस तरह से पता कर लेंगे। 13 का 3, 14 का 4, 16 का 6, 17 का 7. Suppose for example, if we talked about SF6, okay, so first of all choose the central atom. This is the central atom. How to choose the central atom? Generally, the atom or element having a low electronegativity is present in a molecule as a central atom,
and the high electronegativity element is as lateral atom. और सिंपल वे में, अगर ये भी नहीं पता आपको, सिंपल सा याद रखना, अगर जो नंबर में कम है ना किसी मॉलिक्यूल में, जिस एटम का नंबर सबसे कम है वो सेंट्रल एटम है, और उसके चारों जिसका नंबर ज्यादा है वो लेटरल एटम है. सल्फर यहाँ पे 1 है, फ्लोरीन यहाँ पे 6 है, तो सल्फर इज द सेंट्रल एटम. और जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in 99% of the cases, all the central atoms are from p block. जनरली क्या होते हैं वो p block से रिलेटेड होते हैं. ओके, सल्फर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल depict the valence electron around the sulfur. How many are there? 2, 2, 4 and 2, 6. Because it belongs to 16 group, so it has 6 valence electron. Done. Now, how many fluorine are attached with the sulfur? 6 fluorine are attached with the sulfur. And fluorine attached with sulfur by a single bond. फ्लोरीन सल्फर के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से सिंगल बॉन्ड बनाएगा. सिंगल और डबल बॉन्ड कौन कौन बनाएंगे ध्यान से देख लेना. हेलोजन कोई भी है एज ए लेटरल एटम वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन है सिंगल बनाएगा. ओके, ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड होता है. नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्डेड होता है. इतना याद रख लो कि यही होते हैं लेटरल एटम. हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. ओके, डन. अब हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर देयर? 6. तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 and 6. 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय ईच फ्लोरीन. तो अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे करेंगे? अगर एक सिंगल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको भी 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. डबल बॉन्ड अगर है तो उसको भी 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसको 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. लॉन पेयर अगर है, अनसेड इलेक्ट्रॉन है पेयर की फॉर्म में, 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको भी 1 सिग्मा काउंट किया जाएगा. दिस इज द रूल फॉर काउंटिंग. अब ये काउंटिंग यूज कहां पे होगी? अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा. ठीक है ना. अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये सेंट्रल एटम है, लेटरल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन एटम शेयर करेगा. ओके, अब ये यूज कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से. if the molecules contain 2 sigma bond, it has sp hybridization. यदि 3 sigma bond है तो sp2, 2 and 1 3. 4 sigma bond है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 and 1 4. 5 sigma bond अगर बन रहे हैं तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d, 1 3 and 1 5. 6 sigma bond है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2. ठीक है. 7 sigma bond है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. कैसे फाइंड करेंगे, यूज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? लेट अस चेक. फिर वही SF6 का एग्जांपल लिया हमने. सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 फ्लोरीन ले गया. 1 2 3 4 5 and 6. अब काउंट द सिग्मा बॉन्ड. 1 2 3 4 5 6 because each single bond is counted as 1 sigma. So how many sigmas are there? 1 2 3 4 5 6 sigmas are there. 6 sigma अगर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इस मॉलिक्यूल का? sp3d2 है. यानी SF6 का मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d2 हुआ. ऐसे ही हम अब एग्जांपल लेते हैं, एक दो फिर करके देखते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है. ये मेमोराइज करना पड़ेगा आपको. सपोज कोई भी ले लो आप. सपोज मैंने ले लिया SO4-2. इस मॉलिक्यूल को लेते हैं. ये सल्फर है, सेंट्रल एटम है. सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में बिकॉज इट बिलोंग्स टू 16 ग्रुप. और 2 माइनस का एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एटम. यहां पे अगर प्लस है तो उतने आप माइनस कर दीजिए सेंट्रल एटम के अकाउंट से. अगर यहां पे माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए सेंट्रल एटम के अकाउंट में. तो 6 खुद के 2 एक्स्ट्रा, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए. अब हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 4 ऑक्सीजन आर देयर
एंड ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद एटम विद डबल बॉन्ड, यानी एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, शेयर करेगा, वी कैन से। तो दिस इज शेयर्ड बाय वन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ईटन अप बाय ऑक्सीजन, वी कैन से ईच ऑक्सीजन ईट्स 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम ऑफ सल्फर। ओके, अब खत्म 4 की 4। अब द काउंटिंग, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड को क्या काउंट किया जाता है? 1 सिग्मा काउंट किया जाता है। तो हाउ मेनी सिग्मास आर देयर? 1 2 3 4 सिग्मास। 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? sp3 हुआ। डन। ऐसी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सपोज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि टफसल ले लेते हैं, TeCl4। ओके, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमें TE नहीं पता पीरियोडिक टेबल में कहां पे है। TE का प्लेस क्या है, या इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? TE कहां पे है, ये कैसे? पूरी पीरियोडिक टेबल तो मेरे भी याद नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो TE कहां पे है? टेलुरियम कहां पे है? और सीमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ये ना ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ये। इस तरह से आपने मेमोराइज कर रखा है पीरियोडिक टेबल को, ऐसे मेमोराइज करते हैं। और सीमा सिलेगी तेरी पॉकेट, दिस इज TE। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट हैव? इट हैव 16 ग्रुप, 6 इलेक्ट्रॉन। टेलुरियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब लेटरल एटम कितने? क्लोरीन, और क्लोरीन इज ऑलवेज बाउंडेड विद सिंगल बॉन्ड, ईच क्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तो हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टेलुरियम इज ईटन अप बाय क्लोरीन। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। ओके, अब डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, काउंटिंग बाय काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और एक लॉन पेयर को भी 1 सिग्मा ही काउंट किया जाएगा। तो हाउ मेनी सिग्मास आर देयर? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा। 5 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3d1 3 and 1, टोटल 5। तो like this we can determine the hybridization of any of the molecule. Very simple way to determine the hybridization of the molecule. Okay, अब now talked about the shape and geometry of the molecules. Very simple. If the molecules is in sp hybridization state, it has linear structure. कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी? लीनियर स्ट्रक्चर होगी, लाइक दिस। इस तरह से बनाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल BeCl2 आप हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे तो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ईटन अप बाय ईच क्लोरीन बाय 2 क्लोरीन एटम। तो देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड। तो sp कब होगा? जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप लीनियर होगी, और लीनियर किस तरह से बनाओगे आप? लाइक दिस। एंगल कितना हुआ? ये 180 डिग्री का एंगल होगा। डन। उसके बाद सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp2 है तो स्ट्रक्चर होगी आपकी क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 2 and 1, 3 सिग्मा। तो किस तरह से प्लेस करने हैं आपको 3 सिग्मा? लाइक दिस। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, लाइक दिस, एट 120 डिग्री एंगल, 3 सिग्मा लाइक दिस। फॉर एग्जांपल BCl, तो यहां पे आप B रख लोगे, दिस इज योर Cl, दिस इज सेकंड Cl, दिस इज थर्ड Cl। दिस इज द शेप ऑफ BCl3, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर लाइक दिस। Okay, trigonal planar for sp2 hybridization. Next, if 4 sigma are there, ध्यान ले लेते हैं, 4 sigma है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। sp3 अगर हाइब्रिडेशन है, 4 के 4 sigmas bond है, no lone pair is present on the molecule, then shape will be tetrahedral। कैसी होगी?
टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है? लाइक दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये बैक साइड है लेकिन ये दिखाया गया है। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरह से। फॉर एग्जांपल मीथेन, इसका हाइब्रिडेशन पता करोगे आप तो sp3 आएगा, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, all the 4 electrons are eaten up by hydrogen or shared by hydrogen, so 4 sigmas are there, 4 sigma है तो हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 है तो शेप कैसे? टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 28 डन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कंडीशंस हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो भी एक साथ बता ही देता हूं आपको। इफ 3 सिग्मा एंड 1 LP इज देयर, तो भी टोटल कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा हो गए। 3 प्योर सिग्मा है, एक लॉन्ग पेयर है तो टोटल 4 सिग्मा, यानी इस केस में भी हाइब्रिडेशन sp3 आना है। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस स्टेट में, इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा, लेकिन यहां पे शेप चेंज हो जाएगी। अगर ये कंडीशन है 3 सिग्मा और 1 LP की कंडीशन है, तो स्ट्रक्चर होगी आपकी, जियोमेट्री होगी आपकी पिरामिडल। क्या होगी? पिरामिडल होगी। ठीक है, अब पिरामिड कैसे बनाते हैं हम? लाइक दिस, सपोज दिस NS3, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ NS3 3 सिग्मा आर देयर, 1 लॉन्ग पेयर इज देयर, तो इसकी शेप बनती है पिरामिडल लाइक दिस, लॉन्ग पेयर एट दिस पोजीशन, दिस इज पिरामिडल शेप। ओके, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिग्मा एंड 2 LP आर देयर, ऐसा भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा और 2 LP हो, लेकिन काउंटिंग में टोटल 4 हो गए हैं, 4 सिग्मास की तरह काउंट करते हैं इनको, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, बट इसकी शेप फिर चेंज हो जाएगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो शेप विल बी एंगुलर। कैसी होगी? इस कंडीशन में एंगुलर शेप होगी। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर आते हैं। एंगुलर शेप आपको इस तरह से एंगल बनाना है। दिस इज द एंगल, और इसका जो एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। इसका जो एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, 107 104 पिरामिड। दिस एंगल 104 in 3 sigma and 1 LP case and 2 sigma and 2 LP case. Is it clear? Okay. Next आते हैं हम next hybridization. If 5 sigma bond are there, then hybridization will be sp3d and the shape will be trigonal. यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये कैसे बनानी है आपको देखो। 5 सिग्मास आ रहे हैं, ये ऐसे बनेगी। एक तो आप पहले ट्राइंगल बनाओगे, उसके बाद 1 पिरामिड अपवर्ड साइड एंड 1 पिरामिड डाउनवर्ड साइड। इस तरह से 5 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एंड बॉन्ड एंगल 180 का भी एंगल है। अगर ये ट्राइंगल इस शेप में ऐसे ले ट्राइंगल को तो 120 का एंगल भी है, और ये इस तरह से है तो 90 का एंगल भी है। ये अपने एक प्लेन में है तो ये 120 पे है, ये और ये आपस में 180 पे है, लाइक दिस, एंड दिस वन और दिस वन, ये 3 एंगल्स जो है इसके साथ ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसमें 180 भी है, 90 भी है, 120 भी है। ओके, अब केस नंबर 1, if all 5 sigmas are there then the shape will be trigonal bipyramidal। इस हाइब्रिडाइजेशन में और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि 4 सिग्मा हो और 1 लॉन पेयर हो, 4 सिग्मा और 1 लॉन पेयर हो तो शेप होगी आपकी क्या, याद रखना पड़ेगा आपको, ये शेप बनेगी पाई शेप और सीसो शेप भी बोल देते हैं इसको, पाई शेप या सीसो शेप भी बोल देते हैं। कैसे? इस तरह से। सबसे पहले आप इसकी बेसिक जियोमेट्री बनाओगे, ठीक है। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसमें 4 सिग्मा हो और 1 लॉन पेयर TeCl4 लेते हैं। टी में आपको पता है ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 4 आर शेयर्ड अप बाय क्लोरीन एंड 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट। तो 4 सिग्मा है, 1 LP है, तो हाइब्रिडेशन इसका sp3d है।
लेकिन शेप इस केस में शेप बनेगी सीसो या पाई। ये कैसे बनाना है, ये आपको ऐसे बनाना है। इसको के शेप भी बोल देते हैं, के सीसो या पाई। इस तरह से ऐसे रखना है आपको इनको। दिस वन, ये आपका टी है, दिस सीएल, दिस सीएल, दिस सीएल एंड दिस सीएल, और दिस इज द लॉन्ग पेयर। दिस इज योर पाई, और वी कैन से दिस इज के और सीसो, लाइक दिस। ओके, अब इसमें एक और कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि 3 सिग्मा हो और 2 एलपी हो। 3 सिग्मा और 2 एलपी कंडीशन है, तो इसका शेप बनेगा टी। क्या बनेगा, टी शेप बनेगा। कैसे, ऐसे हाइब्रिडेशन हो जाएगा। पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। टी कैसे बनाएंगे, एक बॉन्ड यहां पे आएगा, एक बॉन्ड यहां पे आएगा, एक बॉन्ड यहां पे आएगा, और यहां पे 2 लॉन पेयर्स यहां पे प्लेस करेंगे। These 2 lone pairs are placed at these equatorial positions. These are equatorial positions, these are axial positions. Okay, इसको बोलते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, ये टी शेप बन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ClF3 का लेते हैं हम। ClF3 का एग्जांपल लेंगे तो दिस इज Cl सेंट्रल एटम, दिस इज 1 एट, दिस इज सेकंड एट, दिस इज थर्ड एट, एंड 2 lone pair are present like this. तो दिस इज टी शेप इन दिस हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट एक और कंडीशन बनती है इसकी, ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिग्मा हो और 3 लॉन पेयर हो। 2 सिग्मा और 3 लॉन पेयर हो तो आपकी शेप बनेगी लीनियर। क्या बनेगी, लीनियर। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले आप बेसिक शेप बनाओगे ये वाली। अब लीनियर कैसे बन सकती है, 3 लॉन पेयर्स आपको पुट करने और लीनियर 2 सिग्मा, तो कैसे होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज XCF2 में ऐसा होता है। So this is your Xc, this is your fluorine, this is second fluorine. These are placed in linear, and 3 lone pairs are placed at equatorial position. ये शेप बनेगी कब, जब ये कंडीशन होगी। तो these 4 structures or geometry are possible in sp3 hybridization. Done. Next लेते हैं हम, if the 6 sigmas are there, 6 सिग्मा हो तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, और जो शेप होगी वो होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल इस तरह से बनाएंगे, ये सेंट्रल 2 like this and 4 like this, total 6 bonds are there, 2 out of the plane, above and below the plane, and 4 are in same plane. Suppose like this, suppose ये these 4 corners are there, this is central atom, this is one pyramid, this is second pyramid. This if we join all the lines, it gives a octahedron. One atom is there, second atom is there, 4 atoms are in plane. If we join all the atoms, then it will give a octahedron. So this shape is known as octahedral shape, like this. Or this is also known as square planar. This is also known as square planar bipyramidal. इसको ये भी बोलते हैं, octahedral बोल दो चाहे square planar bipyramidal बोल दो, because this is the square plane and this pyramid and this 2 pyramids are there like this, like this. So square planar bipyramidal. Done. Example ले लेते हैं, SF6 का देखा हमने। So this is the sulfur, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine. All the sigma bonds are there. This is square planar pyramidal or octahedral structure. इस केस में ऐसा भी हो सकता है if 5 sigmas are there और 1 lone pair हो। 5 sigma है, 1 lone pair है, इसको बोलेंगे distorted octahedral. Distorted octahedral. And in this case, lone pair is always placed at the pyramidal position or out of the plane, we can say like this, इस तरह से 5 सिग्मा and 1 lone pair. if ये कंडीशन हो कि 4 सिग्मा हो और 2 lone pair हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 सिग्मा है और 2 एल्पी है, उस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी। इसको यहां ले लेता हूं मैं, लाइक दिस, एक लॉन पेयर यहां पे, एक लॉन पेयर यहां पे, और 4 इस तरह से, लाइक दिस। दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज
square planar structure. 2 lone pair are placed at this position. This is 4 sigma and 12. इसके बाद इसकी कोई कंडीशन होती नहीं है. नेक्स्ट उसके बाद है sp3d3. sp3d3 hybridization और the compound having 7 sigma bond. sp3d3. ओके, तो 3 and 3 6 and 1 7. 7 होगा तो बनेंगे आपके पेंटागोनल बायपिरामिडल. पेंटागोनल बायपिरामिडल. पेंटागोन बनाना है आपको लाइक दिस. दिस इज पेंटागोन. IF7 की स्ट्रक्चर होती है ये. IF7 बना देता हूं मैं, आप देख सकते हो बना करके काउंट करके. इसमें ऐसे होता है IF7. One is flowing like this, one is flowing like this. This is pentagon. These are 2 pyramids. So this is pentagonal बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर 7 सिग्मा बॉन्ड. ऐसा भी हो सकता है कि 6 सिग्मा हो 1 LP हो, तो फिर वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाती है. इसको भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, क्योंकि 6 सिग्मा ऑक्टाहेड्रल आ जाता है. या फिर इसको बोल देते हैं पेंटागोनल यूनिपिरामिडल. एक ही पिरामिड है, ऊपर वाली साइड नीचे लॉन्ग पेयर आ जाता है, तो पेंटागोनल यूनिपिरामिडल भी स्ट्रक्चर भी इसको बोला जा सकता है. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स and types of hybridization and geometry. Okay, next lecture में इसका रीजन क्या होता है कि ये शेप प्रॉपर शेप क्यों नहीं होती, क्यों किसी की शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, क्यों किसी की शेप डिस्टॉर्ट होकर के पिरामिडल हो जाती है, एंगुलर हो जाती है. इस डिफरेंट शेप में मॉलिक्यूल्स क्यों अपने आप को एडजस्ट करता है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. जब हम वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एडजस्ट क्यों होता है मॉलिक्यूल्स. ओके, हैव अ नाइस डे.